ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁਰੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੰਗਵੰਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਚੋੜ ਗੰਗਾ ਦੇਵ ਨੇ ਲਗਭਗ 1100 ਈਸਵੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਣਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1100 ਈਸਵੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਹੈ 192 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, 192 ਫੁੱਟ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ, ਭਰਾ ਬਲਭਦਰ ਤੇ ਭੈਣ ਸੁਭਦਰਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਹ ਖੌਂਡੋਲਾਈਟ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਪੱਥਰ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਬਿਨਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਗਾਰੇ ਤੋਂ। ਵਾਹ, ਬਿਨਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋੜਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਚੂੜਾਂ ਮਤਲਬ ਪਿੰਨਾਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੰਗਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੈਸੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਦੀ ਉਮਨ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਲ ਮਾਧਵ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲੱਕੜ ਦਾਰੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸਾਵਰਾ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਵਸੂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰਦਿਉਮਨ ਮੰਦਿਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ ਸਵਰਗ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਈ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਏ। ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ ਰੇਚ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੱਚੀ? ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਗਾਲਾ ਮਾਧਵ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਥਾਵਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨਤਾ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ 8-8:30 ਵਜੇ ਬੇਸ਼ ਉਲਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਸ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਲਾਗੀ ਰਸਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ, ਕਪੂਰ, ਕੇਸਰ ਦਾ ਲੇਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਰਸੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ 'ਚ ਗਿਣਦੇ ਨੇ। ਓਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਹਾੜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 2 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ। 2025 ਚ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਜੂਨ ਚ। ਹਾਂ, 27 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ 2025 ਵਿੱਚ। 3 ਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਗਨਨਾਥ ਜੀ, ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਸੁਭਦਰਾ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਗੁੰਡੀਚਾ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈਨਾ? 7 ਦਿਨ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ, 7 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਥ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਪਾਪ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ 12ਵੀਂ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਸੀ। ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਤੇ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ? ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਸੀ। 100 ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ 70% ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਪਰ 21% ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵੀ ਸੀ ਤੇ 9% ਨਿਰਪੱਖ ਸਨ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਫਾਈ ਜਾਂ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਬਾਰੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਪੂਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਂਡਿਆ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਹੋਟਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਸਥਾਨਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਜਾ ਮਿਠਾਈ, ਸਭ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ। ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਸੀ 95 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ASI ਯਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ 1973 ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕੀ ਨੇ ਮੁੱਖ? ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਖੁਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਿਸਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਣਾ। 1990 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 6 ਟਨ ਦਾ ਅਮਲਕਾ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ। 6 ਟਨ? ਸੱਚੀ? ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ, ਖਾਸ ਮਸਾਲੇ ਵਗੈਰਾ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਫਾਈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਧਾ, ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਭੀੜ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ। ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ।
आज हम उड़ीसा के मशहूर पुरी जगन्नाथ मंदिर पर जरा गहराई से बात कर रहे हैं, उससे जुड़ी कहानियां, आज की हकीकतें और जो चैलेंजेस हैं उन सब पर। जी बिल्कुल, और हमारे पास जराए भी कई तरह के हैं। रिवायात हैं, मंदिर की तामीर और रसूमात पर तफसीलात हैं, ज़ायरीन के तजर्बात का तज्जिया भी है, और हाँ, तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें और रथ यात्रा के मौशी असरात पर रिपोर्ट्स भी। मकसद यही है कि इस मुकद्दस मकाम की पूरी तस्वीर समझ में आए। सही, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक जीता जागता सकाफती मरकज है। तो फिर शुरू करते हैं इसकी इब्तिदा से। एक कहानी है राजा अंद्राद्युमना की, जिन्होंने ये मंदिर बनवाया, लेकिन इससे पहले भी एक देवता थे, नीलामाधव। जी, रिवायत यह है कि नीलामाधव, जिन्हें मकामी कबीले के लोग पूजते थे, वो बाद में एक खास लकड़ी यानी दारू की शक्ल में जाहिर हुए। अच्छा, लकड़ी की शक्ल में? हाँ, समुंदर में एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा मिला, मगर अजीब बात ये थी कि कोई उसे हिला नहीं पा रहा था। फिर क्या हुआ? फिर एक इल्हामी इशारा हुआ और विश्वासूतो, जो असल पुजारी थे, उन्हें बुलाया गया। उनके आने पर ही वो लकड़ी किनारे लाई जा सकी। और इसी लकड़ी से फिर वो मूर्तियां बनी, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की। बिल्कुल, इसी मुकद्दस दारू से ये तीनों मुनफरिद मूर्तियां तराशी गई हैं। और मशहूर रथ यात्रा, उसका क्या पस मंजर है? वो भी दिलचस्प है। कहते हैं कि बहन सुभद्रा ने शहर देखने की ख्वाहिश जाहिर की, तो बस तीनों बहन भाई अपने रथों पर सवार होकर गंडीचा मंदिर गए, जो उनकी खाला का घर माना जाता है। अच्छा, तो ये वजह है सालाना रथ यात्रा की। अब जरा मंदिर की इमारत पर आते हैं। 12वीं सदी का कलिंगा तर्ज तामीर, सुना है बहुत ऊंचा है। जी, तकरीबन 192 फीट बुलंद है, और खास बात यह है कि ये खोंडा लाइट पत्थर से बना है, बगैर किसी गारे या मोटर के। बगैर गारे के? तो पत्थर कैसे जुड़े हैं? लोहे की डाउल्स यानी सलाखें इस्तेमाल की गई हैं। हालांकि इसी वजह से बाद में जंग लगने से कुछ मसले भी खड़े हुए। अच्छा, और मंदिर के अंदर रोजमर्रा की जिंदगी कैसी है, रसूमात वगैरह? वहाँ तो हर वक्त कुछ न कुछ चलता रहता है। रोजाना कई रसूमात होती हैं, जैसे सुबह 8 बजे के करीब बेशा इलागी यानी देवताओं के लिबास की तब्दीली। और वो बावर्ची खाना, सुना है बहुत बड़ा है। जी हाँ, मंदिर का बावर्ची खाना तो हैरान अंगीज है। वहाँ बहुत कम वक्त में हजारों लोगों के लिए महाप्रसाद तैयार होता है, और त्योहारों पर तो आप सोचे लाखों लोग ये प्रसाद हासिल करते हैं। लाखों? ये तो वाकई हैरानकुन है। अच्छा, ये तो हो गई पुरानी बातें और रसूमात। आजकल जो ज़ायरीन जाते हैं उनका तजुर्बा कैसा रहता है? आपने एक तहकीक का जिक्र किया था, सेंटिमेंट एनालिसिस। जी, वो ऑनलाइन तबसरों का तज्जिया था। तकरीबन 100 तबसरे देखे गए। नताइज मिले जुले थे। मिले जुले मतलब ये कि 70% तबसरे मुस्बत थे। मंदिर का माहौल, दर्शन का तजुर्बा, इन सब की तारीफ थी, लेकिन 21% मनफी भी थे। अच्छा, मनफी क्यों थे? ज्यादातर शिकायतें थी हुजूम बहुत ज्यादा था, इंतजामिया बेहतर हो सकती थी, और कुछ पंडायों यानी पुजारियों के रवैये पर भी बात थी। ये तो हर बड़ी ज़ियारतगाह का मसला हो सकता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि रूहानी सुकून और दुनियावी मुश्किलात साथ साथ चल सकती हैं। और रथ यात्रा के वक्त तो ये चीजें और बढ़ जाती होंगी। हालांकि इसका माशी फायदा भी तो बहुत है। जी हाँ, माशी फायदा बहुत है। होटल, ट्रांसपोर्ट, मकामी दस्तकारी, खास तौर पर वो खाजा मिठाई, सबका कारोबार खूब चलता है। हुकूमत भी काफी पैसा लगाती है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। लेकिन फिर वही बात, लाखों का हुजूम संभालना, रिहाइश का मसला, ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। और इन सब के साथ मंदिर की इमारत को भी तो महफूज रखना है। समंदरी हवा, नमक और वो लोहे की डावल्स का जंग। दुरुस्त कहा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI वो 1973 से इस पर काम कर रहे हैं। काफी मेहनत तलब काम है। पुराना प्लस्तर हटाना, पत्थरों को देखना, खराब पत्थर बदलना, दरारें भरना। वो 1990 में एक बड़ा पत्थर गिर गया था ऊपर से। जी, अमल का पत्थर, तकरीबन 6 टन वजनी, वो ऊपर से गिर गया था। बड़ा नुकसान था, लेकिन उसे कामयाबी से दोबारा लगा दिया गया। तो अब जदीद तरीके इस्तेमाल हो रहे होंगे तहफ़्फ़ुज़ के लिए? बिल्कुल, अब पॉलीमर मार्टर, स्टेनलेस स्टील की पिने और पत्थरों की सफाई के लिए केमिकल्स, ये सब इस्तेमाल हो रहा है। तो खुलासा ये है कि पूरी जगन्नाथ मंदिर एक ऐसी जगह है जहां कदीम अकीदा, जिंदा रिवायात, शानदार फन तामीर और जदीद दौर के दबाव जैसे सियाहत और तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत सब एक साथ मौजूद हैं। यकीनन, और यहीं से एक अहम सवाल भी उभरता है। वो क्या? यही कि मुस्तकबिल में इस तरह के कदीम और बेहद मकबूल मकामात अपनी असल रूह और रिवायत को कैसे बचा पाएंगे, खास तौर पर जब सियाहों की तादाद बढ़ रही है और माहौलियाती तब्दीलियां भी हो रही हैं। ये तवाजुन कायम रखना एक बड़ा चैलेंज है। दोस्तों नमस्ते, आज उस दिव्य शक्ति का पर्दा उठाते हैं जिसके सम्मान में हवा भी अपना रुख मोड़ लेती है। क्या आप एक ऐसे मंदिर की कल्पना कर सकते हैं जिसका झंडा हमेशा हवा से उल्टी दिशा में लहराता है, जहाँ के गुंबद की परछाई जमीन पर कभी नहीं पड़ती, और जहाँ समंदर की लहरों की आवाज दरवाजे के एक कदम अंदर आते ही शांत हो जाती है? ये कोई कहानी नहीं, ये सच है पुरी के अनोखे जगन्नाथ मंदिर का। एक ऐसी जगह जहाँ विज्ञान और विश्वास एक साथ हैरान हो जाते हैं। चलिए आज इस अद्भुत धाम के कुछ ऐसे राज जानते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। सबसे पहले यहाँ के भगवान की मूर्तियाँ देखिए। ये पत्थर या धातु की नहीं बल्कि नीम की पवित्र लकड़ी से बनी है, जिन्हें दारू ब्रह्म कहते हैं। और इनके हाथ पैर नहीं है, ये अधूरी है।
इसके पीछे एक दिल को छू लेने वाली कहानी है। कहते हैं कि राजा इंद्रधुम्न के लिए स्वयं भगवान विष्णु एक बूढ़े कारीगर का रूप लेकर आए थे। उन्होंने मूर्तियां बनाने के लिए एक शर्त रखी थी कि जब तक काम पूरा न हो जाए कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। लेकिन कुछ हफ्तों बाद जब कोई आवाज नहीं आई तो अधीर रानी ने राजा से दरवाजा खुलवा दिया। शर्त टूटते ही वो दिव्य कारीगर अंतर्ध्यान हो गए और पीछे छोड़ गए भगवान की ये अधूरी पर जीवंत मूर्तियां। कहते हैं यही ईश्वर की इच्छा थी कि वो इस रहस्यमय रूप में ही दुनिया पर अपनी कृपा बरसाएं। हर 12 या 19 साल में नबकालेबर नाम के एक विशेष अनुष्ठान में इन लकड़ी की मूर्तियों को पूरी श्रद्धा के साथ बदला जाता है। अब बात करते हैं मंदिर की रसोई की, जो दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। यहाँ 56 तरह का महाप्रसाद बनता है और वो भी बिना प्याज और लहसुन के। और चमत्कार यहीं खत्म नहीं होता। एक के ऊपर एक रखी 7 मिट्टी की हांडियों में सबसे ऊपर वाली हांडी का खाना सबसे पहले पकता है और चाहे उस दिन 1000 भक्त आए या लाखों, प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता और ना ही व्यर्थ जाता है। अब कुछ ऐसे रहस्य जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली है। जरा सोचिए, 214 फीट ऊंचे शिखर पर लगा ध्वज हवा के रुख को चुनौती देता है, हमेशा उल्टी दिशा में लहराकर। मंदिर के मुख्य गुंबद की परछाई दिन के किसी भी समय जमीन पर नहीं दिखती। जैसे ही आप मंदिर के मुख्य सिंह द्वार से अंदर कदम रखते हैं, पास के समंदर का शोर बिल्कुल बंद हो जाता है। पर जैसे ही एक कदम बाहर निकालते हैं, लहरों की आवाज फिर से साफ सुनाई देने लगती है। और सबसे अनोखी बात, आज तक मंदिर के शिखर के ऊपर से किसी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया। ये मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि भारत के 4 धामों में से एक, आस्था और अनगिनत रहस्यों का केंद्र है। यहाँ आकर गुरु नानक देव जी से लेकर आदि शंकराचार्य तक कई महान संतों ने ध्यान लगाया। आपको इनमें से कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा अचंभित करता है? क्या आपके पास इसका कोई वैज्ञानिक या आध्यात्मिक स्पष्टीकरण है? यात्रा अधूरी है, रहस्य और भी हैं। वादा है अगला वीडियो इससे भी ज्यादा रोचक होगा। ऐसे ही अनगिनत रहस्यों को मिलकर सुलझाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और हमारे इस दिव्य परिवार का हिस्सा बने।